Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our topic is types of vectors. So first type of the vector that we are going to study, that one is equal vectors. Two vectors having the same magnitude and same direction are called equal vectors. Let's suppose, students, this one is the one vector F represented by AB, and that's another vector. Let's suppose that's another vector CD. It's also vector F. You know, in this the length means magnitude is same, direction is same. That's why you may say AB is equal to CD. It means vector F is equal to vector F. So these are the two vectors which are having the same magnitude and same direction. That's why they are called equal vectors. So that was the first type. Dear students, in a second, negative vector. So vector which is equal in a magnitude but opposite in a direction to a given vector is called the negative vector. Let a vector F be represented by a straight line and another vector minus F represented by a straight line as shown in the figure. Let's suppose this one is a vector represented by AB, that one is a F, another vector CD, that's its direction is opposite minus F. So as you know that they both have the same magnitude but opposite in direction, that means that was the given vector, and this CD is a negative vector of AB, and now AB is a negative vector of CD. So they are known as negative vectors. After that, the third vector, look at the screen, parallel vectors. So parallel vectors are vectors which have the same or the parallel support. They can have equal or unequal magnitudes and their directions may be same or opposite. So look at this one. Let's suppose this one is a vector A and this one is a vector B. Whether their magnitude is same or not, it makes no difference, but their direction should be the same. So they are the parallel vectors. This one another vector C, that's also parallel vector. That one is the same direction, but if the vector is given like this D, that's also the parallel vector. If another vector is given like this vector E, that's also, these all are parallel vectors. But remember one thing, when the two vectors have the same direction, those are known as a like parallel vectors, and when they have the opposite direction, then they are unlike parallel vectors, or they are also known as anti-parallel vectors. Look at this one, E and A, they are unlike parallel vectors or anti-parallel vectors. A and B are parallel vectors. Which one? Like parallel vectors. B and C are like parallel vectors, but C and D are unlike parallel vectors, or you may say anti-parallel vectors. So that was the parallel vector. Then next one is dear students, next is free vector. A vector which is displaced parallel to itself is called a free vector. Let we are having a vector. Let's suppose we are having a vector, this one is a vector B, it's placed at PQ. Let's suppose I displace this vector, same vector, this B vector is displaced parallel to itself over here at the next position R and S, same vector is displaced from PQ to RS having the same direction and same magnitude, then this vector is known as free vector. Remember one thing,
When a vector is displaced parallel to itself, the vector is known as free vector, or in other words, you can say that when a vector is displaced from one place to another, keeping the same direction, that's known as free vector. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे रखा जाए, उसकी डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए, सेम वेक्टर को सिर्फ डिस्प्लेस किया गया, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर कहते हैं. नेक्स्ट वेक्टर आपके पास है नल वेक्टर. A vector whose magnitude is 0 is known as null vector. Look at the board. A vector whose magnitude is 0 is known as null vector. इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं जो मैंने यहां पे दी है, null vector are the zero vector. When the two vectors are equal in magnitude but opposite in a direction, and when they are added, their sum becomes 0. The resultant sum of the two vectors is called the null vector or zero vector. Remember one thing again. Null vector or zero vector is not represented by 0, but this is represented like this. When the two vectors, let's suppose one is f1 and its magnitude is 6 Newton, and other vector f2, its magnitude also 6 Newton, but its direction is change, minus. So when you sum that f1 plus f2, so r, by putting the values 6 Newton plus minus 6 Newton, that means r is equal to 6 Newton minus 6 Newton, so r is equal to 0. So their magnitude is 0, and when you talk about the 0, this may also represent by, this one is this is known as null vector. That means जब दो वेक्टर्स हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो उनका सम जो बनेगा वो जीरो वेक्टर बनेगा, और जीरो सम को हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं. और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी डायरेक्शन, मीन एनी डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकती है. दैट्स वाई जब हम नल वेक्टर को डिफाइन करते हैं, नल वेक्टर में हम क्या कहते हैं? A vector whose magnitude is 0 and its direction is arbitrary. उसके बाद हमारे नेक्स्ट आपके पास है यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट टाइप जो आपके पास है वो क्या है? यूनिट वेक्टर. पहले आप डेफिनेशन देखें. A vector in any direction whose magnitude is 1 is called a unit vector. It is denoted by letter having cap over it. सपोज करें ये वेक्टर A है. अगर मैं कहूं इसका यूनिट वेक्टर कैसे शो करेंगे, तो आप ए कैप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको स्मॉल लेटर से ऐसे भी शो कर सकते हैं. इसी तरह से अगर ये वेक्टर बी है, मैं आपसे कहूं इसका यूनिट वेक्टर कैसे शो करेंगे, तो आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी, ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर हो. और इसका फार्मूला जो बनता है, अगर देखेंगे एक वेक्टर जो होता है, आपको याद होगा एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन. तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन को शो करता है. एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी क्या होती है? डायरेक्शन. डायरेक्शन कौन शो करता है? यूनिट वेक्टर. तो आप कह सकते हैं यूनिट वेक्टर जो है, इसका फार्मूला क्या बनेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो दिस इज द फार्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर. अब याद रखें यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर को अकम्पनीड होता है उसी की डायरेक्शन को शो करता है. यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक काम है, क्या शो करता है? उसकी डायरेक्शन को शो करता है. और इसी तरह से ये जो है कोई भी डायरेक्शन शो करे तो उसको क्या कहते हैं? अनस्पेसिफाइड वेक्टर्स कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स कहते हैं. एक होते हैं स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स. उसका मतलब है थ्री जो आपके पास प्लेन्स होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन, उसमें 3 डायरेक्शंस आपके पास आ गई, एक एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो 3 और यूनिट वेक्टर होते हैं, आई, जे एंड के. दीज आर द 3 यूनिट वेक्टर्स. कौन से? स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स हैं विच शोज द डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. थोड़ा सा फिर दोबारा से कर रहे हैं. यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. ये जिस भी वेक्टर के साथ आएगा उसकी क्या शो करेगा? डायरेक्शन को शो करेगा. इसके दो से, एक स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक अनस्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर होते हैं. अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस हो तो उन यूनिट वेक्टर्स को आई, जे या के से शो करते हैं.
और ये जो यूनिट वेक्टर आपके पास हैं, और ये क्या किसको शो करते हैं, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जिस लेटर से वेक्टर को शो करें उसी से हो। यूनिट वेक्टर को आर कैप से भी शो कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को ए कैप से भी शो कर सकते हैं, और आमतौर पे एन कैप से भी इसको शो किया जाता है। तो लेकिन शर्त यह कि यूनिट वेक्टर की पहचान क्या है कि उसके ऊपर क्या आ जाती है, कैप आ जाती है। दैट वन इज अ यूनिट वेक्टर। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डेफिनेशन की तरफ देखें, अ वेक्टर विच शोज द लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, या लोकेशन वेक्टर भी इसको कहा जाता है। इन 3 डायमेंशन इट इज रिप्रेजेंट बाय आर। इसको पोजीशन वेक्टर को किससे शो करते हैं, आर से। इट हैज द 3 डायमेंशंस। एक कौन सा होता है इसका, एक्स कंपोनेंट, दूसरा क्या होता है वाई कंपोनेंट, और तीसरा क्या होता है z कंपोनेंट। यू मे राइट हियर, आपको पता, आपको याद होगा कि आप जो है x क्या है, एक वेक्टर कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, मींस ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये डायरेक्शन अलोंग द एक्स को अभी हमने कहा था किससे, i से शो करते हैं। ये क्या हो जाएगा, y j हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, z k हो जाएगा। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर जो अलोंग विद द कोऑर्डिनेट्स। एक x, ये i किसको शो कर रहा है कि इसका कंपोनेंट कहाँ पे है, x एक्सिस पे, j किसको शो कर रहा है, y पे है, और k किसको शो कर रहा है कि z एक्सिस पे। दैट वाज द पोजीशन वेक्टर। उसके बाद आपके पास पोजीशन वेक्टर के पास नेक्स्ट जो आपका वेक्टर है वो है पोलर वेक्टर। देखें पोलर वेक्टर की डेफिनेशन को पहले समझें। द वेक्टर रिलेटेड टू द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी आर नोन एज पोलर वेक्टर। ट्रांसलेटरी मोशन कैसे, जैसे लीनियर वेलोसिटी है, जैसे आपके पास लीनियर मोमेंटम है, वन डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसके बारे में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। पोलर वेक्टर के बाद है आपके पास एक्सियल और सूडो वेक्टर्स। अगर आप यहां पे देखें सूडो वेक्टर्स के हाल से क्या कहते हैं, द वेक्टर्स विच आर रोटेटरी, which are related to the rotatory motion of a body are known as axial vectors. For example, torque, angular velocity, angular acceleration, all those vectors which are concerned with the rotatory motion are known as axial or pseudo vectors. उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। देखें इस तरह से सपोज करें ये F1 है, F2 है, F3 है, F4 है। ये 4 वेक्टर्स आपके सामने मैंने शो किया। आप यहां पे देखेंगे F1 और F2 एक ही लाइन पे हैं। क्या, को मींस सेम, लीनियर, एक ही लाइन पे। The two vectors are collinear if they are at the same direction, are parallel or anti-parallel. Collinear vectors में जैसे सपोज करें F1 और F2, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये आपके पास ये लाइन ऑफ एक्शन आपकी क्या है, ये सेम है, सो दे आर द कोलिनियर। इन F3 और F4 को देखें, इनकी भी ये भी क्या है, कोलिनियर। अच्छा, जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन हो। लेट सपोज इस तरफ ये F5 है और इस तरफ ये F4 है। दीज आर आल्सो द वेक्टर्स बट देयर लाइन ऑफ द एक्शन इज द सेम, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि इसका रेशियो जो होता है, रेशियो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ A अपॉन B जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर A इज इक्वल टू KB, वेयर K इज अ कांस्टेंट एंड दिस वन इज अ स्केलर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास देखें, आप क्या लिखा हुआ, कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच passes through the same point. In other words, a concurrent vector system is a set of the two or more than two vectors whose line of the action intersecting at a same point, at a common point. It's not necessary for all any other vectors to be actually in contact with a common point. देखें, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए न्यू चीज है। लेट सपोज एक वेक्टर F1 है जो ऐसे गुजर रहा है, दिस वन इज F1। एक ऐसे जा रहा है F2, एक ऐसे आ रहा है F3। अगर आप यहां पे देखें F1, F2, F3, द थ्री आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। सपोज करें ये पॉइंट A में से गुजर रहे हैं, सो F1, F2 और F3 जो हैं क्या कहलाएंगे, कंकरेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि एट ए टाइम उस वक्त गुजर रहे हों। अगर सपोज करें एक और वेक्टर है जो यहाँ पे है,
अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो यहीं से गुजरेगा, F4 सपोज करें ये है, यहीं से गुजरेगा, सो दे ऑल आर कंकरेंट वेक्टर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दीज वर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।